Hello everyone, welcome to my new video. So in this video we will discuss about the general knowledge section, that is section D of our Assam University Silchar 2022 B.Ed entrance question paper. So here, starting from the first question, that is question number 41. By the way, if you people are new to my channel, please do subscribe my channel. Whenever you guys subscribe my channel, I feel so good, I feel so motivated. I really like and appreciate to upload more videos on these topics. Okay, so please do subscribe my channel. It will cost you nothing, but it will surely motivate me very much. So let's start with our video. So here question number 41 is the metal that exist in liquid form at room temperature. Look, sodium is nothing but basically it is a form, it is something that we eat daily. That is our common salt only, na? NaCl, sodium chloride. So this is not the correct option. This is not the correct option. Mercury, yes, mercury is the correct option. You know why this mercury remains in liquid condition at room temperature? Look, if someone just tells you that mercury remains at room temperature, remains liquid at room temperature, it is not like just you will just listen it and yes, mercury remains at a room temperature. No, it's not like this. You should ask that person that why mercury remains at liquid state in room temperature. Look, here is a reason behind this. Mercury has a low melting point. Okay, so which means कि मरकरी जो है ये क्या होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है. जैसे कि आप आइस है, आइस देख लीजिए या फिर बाकी कुछ भी हो, वो मतलब क्या होता है, उतना जल्दी मेल्ट नहीं होता है ना. सबका एक डिफरेंट क्या होता है, टेम्परेचर होता है मेल्ट होने के लिए. वैसे ही क्या है, मरकरी का जो टेम्परेचर है ना जिसमें वो मेल्ट होता है वो बहुत ही लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर में हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही रहता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 42. Total number of districts in Assam as now is, here the correct answer is 35. Okay, 35. Question number 43. The theme of World Biodiversity Day of year 2022 is, the correct answer is building a shared future for all life. So here option number B is correct. All these questions are very much important for your B.Ed entrance exam, so go through the whole question paper very carefully. Okay, now the minimum quorum of members required for the beginning of a meeting in Lok Sabha is, the correct answer is 1/10 of the total membership. So here option A is the correct answer. Now moving to question number 45, that is, in 2024 Olympic Games, the 2024 Olympic game will be held in, so the correct answer is France. Okay, so here France is not given but Paris is given, so it will be Paris. Now question number 46. In certain code 3456 is coded as rope, 15526 is coded as apple, then how 54613 is coded? देखो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. देखो यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, 5 है ना, तो यहाँ पे ये 5 है, तो ये वाला जो 5 है ये 5 किसको डिनोट करता है, 5p को डिनोट कर रहा है ना. इसका मतलब हमारा 5 का मतलब है p. नेक्स्ट हमारा क्या है, 4. तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जो 4 है ये किसको डिनोट कर रहा है, o. तो यहाँ पे होगा 4 डिनोट करता है o को. फिर 6 किसको डिनोट कर रहा है, 6, ये देखो यहाँ पे लास्ट वाला 6 है ना, तो ये 6 डिनोट कर रहा है ई को, ई, तो 6 डिनोट कर रहा है ई को. नेक्स्ट क्या आता है हमारा 1, यहाँ पे देखो 1 है तो 1 डिनोट कर रहा है ए को, 1 ए. फिर क्या आता है 3, तो ये 3 कहाँ पे है, हाँ ये 3 पहले हमारा यहाँ पे है, तो देखो 3 किसको डिनोट कर रहा है, 3 डिनोट कर रहा है आर को, 3 किसको डिनोट कर रहा है आर को. तो इसका सही क्या आंसर होगा, POEAR. देखो POEAR, हाँ ये देखो ये. सो कौन सा वाला आंसर ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 47। अगर आप में से किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछना। हाँ, लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे जो भी उनका कन्फ्यूजन था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मेरा जो वीडियोज़ है ये आपके लिए यूज़फुल है, प्लीज़ आप मेरा जो वीडियो है उसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47। डैश इज़ द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया। तो द करेक्ट आंसर इज डिग बॉय। ओके, तो इसका कोई रीज़न नहीं है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। कौन सा है ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया? डिग बॉय। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 48। अभी आया है सारा मतलब मज़ेदार क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो ए मैन वॉज वर्किंग इन द इवनिंग जस्ट बिफोर सनसेट। तो सनसेट पहले बोला है कि सनसेट से पहले ये इंसान चल रहा है। तो सनसेट में कौन सी तरफ सन कौन सी तरफ रहता है? वेस्ट की तरफ रहता है ना। तो ये वेस्ट है हमारा, ये ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। ओके, को थोड़ा अच्छे से लिख लेती हूँ। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। ओके, हिज वाइफ सेड दैट हिज शेडो फेल ऑन हिज राइट साइड। तो जो इंसान था उसका जो मतलब शेडो था वो उसकी कौन सी साइड में गिर रहा था? राइट साइड में गिर रहा था। इफ़ द वाइफ वॉज वर्किंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैन, मतलब ए मैन वॉज वर्किंग इन द इवनिंग बिफोर द सनसेट। तो ये वाइफ जो थी, सपोज हम लोग यहाँ पे ऐसे एक रफ ड्राइंग करते हैं, ये वाइफ जो थी ये किया किस साइड में खड़ी थी? ये यहाँ पे जो मैन था उसके ऑपोजिट में खड़ी थी, ठीक है। ऐसे ऐसे फेस टू फेस वो खड़े थे। वॉज वर्किंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैन, देन विच डायरेक्शन द वाइफ इज़ फेसिंग। तो अभी पूछा है कि वाइफ कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही है। देखो, अगर वेस्ट से सनलाइट आ रहा है, इसका मतलब क्या, इस तरफ से सनलाइट आ रहा है और उसका शेडो किस तरफ पड़ रहा है? राइट की तरफ, है ना। तो अगर इस तरफ से आ रहा है तो वो इंसान, तो इसका शेडो किस तरफ पड़ेगा? इसका शेडो तो ये होगा ना, राइट, यहाँ पे होगा इसका शेडो। तो यहाँ पे अगर इसका शेडो गिर रहा है तो सनलाइट को कहाँ से आना चाहिए? इस तरफ से आना चाहिए, है ना। तो अगर ये साइड इसका वेस्ट होगा, सपोज़ हम लोग यहाँ पे घुमा के दिखाते हैं कि ये वेस्ट से इसका सनलाइट आ रहा है और ये इंसान यहाँ खड़ा है और इसका शेडो कहाँ पे गिर रहा है? इसका शेडो कहाँ पे गिर रहा है? इसके राइट साइड पे ना, मतलब यहाँ पे इसका शेडो गिर रहा है और इसका जो वाइफ है ये ऑपोजिट डायरेक्शन से चल के आ रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो बच्चों, अगर इसका ये जो शेडो है अगर ये राइट साइड में मतलब इधर गिरना होगा तो वैसे इसको सनलाइट मिलना चाहिए। तो ये जो मैन है इसका फेस किस तरफ होना चाहिए? इसका फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, है ना। तो उसकी वाइफ फिर तो इंसान का, ये मैन का जो फेस है हमें पता चल गया ये नॉर्थ की तरफ था, जिसकी वजह से वेस्ट से जब इस पर धूप गिरा तो इसका जो शेडो है ये यहाँ पे राइट की तरफ बना। तो अभी क्या पूछा है कि इफ़ द वाइफ वॉज वर्किंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैन, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जैसे कि ये नॉर्थ में जा रहा है तो ये सपोज इस तरफ आ रही है, साउथ में आ रही है, विच डायरेक्शन द वाइफ इज फेसिंग, तो कौन सा होगा? ये वाइफ किस तरफ फेस कर रही है? साउथ डायरेक्शन फेस कर रही है, तो यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर साउथ। आई होप कि आप सबने समझा होगा, अगर नहीं समझा तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखो, अगर ये जो इंसान है, अगर इसको अगर मतलब इस तरफ से अगर सनलाइट आ रहा है तो इसका शेडो कहाँ पे होगा? इस तरफ होगा, राइट में होगा, ईस्ट की तरफ। तो इसका जो चेहरा है ये कौन सी तरफ होगा? नॉर्थ की तरफ होगा, है ना। तो इसकी वाइफ कौन सी तरफ आएगी? साउथ की तरफ आएगी, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। द टर्म बिशॉप इन स्पोर्ट्स इज़ रिलेटेड टू। तो बिशॉप किस में होता है? चेस में होता है ना, बिशॉप, जिसको हम लोग हिंदी में हाथी बोलते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या बोला है। 2 बस टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। तो सिटी, यहाँ पे एक सिटी ए है, यहाँ पे एक सिटी बी है, उसका फेयर बोला है कि उसका, और एंड 3 टिकट्स ऑफ सिटी ए टू सी, और फिर सिटी ए टू सी है, बीच में क्या आता है? बीच में बी आता है, हाँ। तो 77। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको दूसरी जगह पे सॉल्व करके दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस है। तो
तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, देखिए कि 2 जो बस टिकट है फ्रॉम ए टू बी एंड 3 टिकट फ्रॉम ए टू सी, इसका प्राइस क्या है 77 है। तो ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग जो डिस्टेंस या फिर जो टिकट का प्राइस है वो एक के लिए हम लोग सपोज एक्स पकड़ लेते, और ए टू सी का जो एक टिकट का प्राइस है वो हम लोग वाई कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गिवन जो है वो क्या बोला है कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि 2 टिकट और ए टू बी से और 3 टिकट ए टू सी से 77 है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 77, है ना। और हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, ये जो सेकंड हमारा दिया हुआ है 2 टिकट फ्रॉम ए टू सी 73 और 3 टिकट ए टू बी से वो 73 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 73 रुपीज़। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी हम लोग ये जो हमारा इक्वेशन आया ना, इसमें देखो ये 2 और ये 3, हाँ इसको हम लोग 6 बना सकते हैं। और अगर देखो अगर ये मतलब 6 बन गया तो क्या हमारा फ़ायदा होगा कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मतलब दूसरे इक्वेशन में बिठा के हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। आप लोग ये प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं मतलब नेक्स्ट पार्ट में जाऊँगी। ओके सो तो देखो तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें इक्वेशन मिला था क्या, सॉरी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना आया 77, और फिर 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 73, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 बनाने के लिए और इसको 6 बनाने के लिए हम लोग इसे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम गोज़ फॉर दिस वन, ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी हमें करना पड़ेगा। और फिर इसको हम लोग इसे 6 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो सेम गोज़ फॉर दिस वन, है ना। इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं पावर नहीं लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। ओके तो अभी ये कितना आ जाएगा, अभी आ जाएगा कि 3 2 ज़ा कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9y, 3 3 ज़ा 9y इक्वल्स टू 77 इंटू 3 आ जाएगा आपका 231। और अभी ये आपका सेकंड जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2, ये कितना आ जाएगा आपका 3 2 ज़ा 6x प्लस 2 2 ज़ा 4 ये 4y इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे 146 आएगा ना, 73 इंटू 2 तो 146 आता है। ओके तो अभी देखो, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 6x है इसको रिप्लेस कर सकते हैं ना इसके साथ। तो हम लोग ये जो इक्वेशन नंबर हमारा जो 2 है, ठीक है, ये जो 2 है हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं ऐसे कि 6x इक्वल्स टू 146 माइनस 4y, ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग इसे। तो अभी हम लोग ये जो है इसको किस में रिप्लेस करेंगे, इसको इसमें बिठाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बिठाते हैं, तो इसमें अगर बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो अभी इसमें हो जाएगा कि अगर हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करते हैं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा कि ये 6x की जगह पे हम लोग क्या इसको बैठा देंगे, हाँ 146 माइनस 4y प्लस 9y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 231 हो जाएगा, है ना। तो अभी देखो अगर हमने इसे ऐसे मतलब रिप्लेस किया तो क्या होगा। अच्छा अभी मैं ये 6x वाला ये वो रब इरेज कर देती हूँ, हाँ आई होप कि इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं होगी। ओके तो फिर अभी हमारे पास क्या मिला, ये वाला मिला। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड में लेके जाएंगे, है ना। तो फिर हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी इसे लिख सकते हैं -4y प्लस 9y इक्वल्स टू 231 माइनस 146, है ना। हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये
-4y + 9y, इसका मतलब क्या हुआ, ये 4y 9y से माइनस हो जाएगा, तो इसमें कितना आएगा हमारे पास 5y आएगा, है ना, इक्वल्स टू कितना होगा 231 - 146, 231 - 146 कितना आता है बच्चों 85 आता है, ठीक है। तो अभी ये y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 85 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका यहाँ पे 17 ना, 5 1 ज़ा 5, फिर आता है यहाँ पे 35, तो 5 7 ज़ा मतलब 35 आता है, तो यहाँ पे कितना होगा 17 होगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया है कि y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 17, ठीक है। अभी मैं आपको फिर से, तो आप याद रखिए y का वैल्यू 17 है, तो अभी हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो हमारे पास जो y था, मतलब a to c का जो फेयर था वो कितना आ गया, वो 17 आ गया। अभी हमें निकालना है कि x का कितना वैल्यू था। तो देखिए हमने जो पहला हमारा इक्वेशन लिखा था ना, 2x + 3y = 77 लिखा था ना हमने। अभी अगर हम लोग इस इक्वेशन में बिठाएंगे तो ही हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है ये। तो देखो 2x हाँ + 3y, अभी 3y का वैल्यू पता है हमें, 3 × 17 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आएगा 77, हाँ एज गिवन। तो फिर 2x + 7 3 से कितना आता है 21 का 1 कैरी का 2, 3 1 = 3 4 5 51 = 77। तो फिर हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 77 - 51 डिवाइडेड बाई 2, हाँ तो ये कितना आएगा आंसर हमारा अभी 77 - 51 डिवाइडेड बाई 2। चलो देखते हैं कितना आता है, देखो 77 - 51 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 77 - 51 कितना आता है 26 आता है, 26 डिवाइडेड बाई 2 किसका वैल्यू है x का वैल्यू, तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। तो हमारा यहाँ पे टोटल कितना निकला, हमारा y का वैल्यू निकला था 17 और x का वैल्यू हमारा कितना निकला 13, ठीक है। तो अभी हम लोग चलिए चेक करते हैं कि कौन सा जो हमारा वो है ऑप्शन है, ये 13 और ये 17 का है। तो दोस्तों अभी देखिए B2A का कितना आया था हमारा 13 रुपीज़ और C2A का हमारा आया था 17 रुपीज़। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर देना, और चलो इतना तो बनता ही है। ऑल द गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, और अगर आपको कोई भी नया वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आई विल श्योरली मेक ए वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ओके। चलो बाय, टेक केयर।